Hello students, welcome back to my channel. Today I am discussing the exercises of the chapter Skin class 9th. Right? Now here just you say name the three sub layers of the epidermis. The three sub layers of epidermis are outermost conified layer, middle granular layer, innermost germinative or Malpighian layer. I hope it is clear. Mention any three functions of the mammalian skin. The three functions of the mammalian skin: it protects the internal organs of the body, it regulates the body temperature, it helps in cutaneous sensation, right? And the skin is richly supplied with the cutaneous sensory receptors. These receptors help in sensing touch, pain, pressure, heat, etc. What are goose flesh? How does it? इसका भी आंसर से what are erector pili muscles? Where are they located? What is their function? See, each hair follicle is a bundle of smooth muscle cells called erector pili muscle. What are erector pili muscles? Each hair follicle is a bundle of smooth muscles and cells. They are called erector pili muscles and they are present around the hair follicle. जो erector pili muscles होते हैं उसके hair follicle के आसपास होते हैं. And what is their function? The contraction of these muscles, function, F means function, the contraction of these muscles pulls the hair follicle and upright यानी ऊपर की the position and dimples the skin. मतलब ऊपर पुश करते हैं, जब स्किन है इसको दबाएंगे तो चीज ऊपर आएगी. टू प्रोड्यूस गूस फ्लैश, वही पूरा क्वेश्चन है गूस फ्लैश क्या है. तो जब एरेक्टर पोलाई मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हेयर फॉलिकल में अपराइट ऊपर की तरफ पोजीशन में, तो उससे गूस फ्लैश होते हैं जो कि हीट रिटेंशन और प्रोटेक्शन में काम होते हैं. गूस फ्लैश का क्या फंक्शन होता है? ये हीट रिटेंशन यानी गर्मी से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, स्वेट निकलता है. एंड इट कंटेन्स मेलानिन विच प्रोवाइड्स कलर टू द स्किन. तो erector pili मसल्स का फंक्शन फर्स्ट टू प्रोड्यूस गूस फ्लैश एंड सेकेंड it produces melanin pigment that provides color to the skin. I hope it is clear. Now differentiate between leukoderma and albinism. When I ask leukoderma and albinism, see what is leukoderma? Due to the loss of pigmentation means melanin pigment, small or large patches appears formed at different regions of the body. ल्यूकोडर्मा में जो शरीर में सफेद दाग आपने देखा होगा, बहुत से लोगों के पड़ जाते हैं, जो व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, कलरलेस स्किन हो जाती है जिसमें मेलानिन पिगमेंट नहीं होता इधर उधर. तो ये इसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं और ये रेसेसिव ट्रेट है, ये हेरिडिटरी ट्रेट है. ये इसका कारण क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि ये क्यों होता है, लेकिन इसके जो पैचेस होते हैं पिगमेंटेशन, लेकिन इफ देयर इज ए कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन ऑल ओवर द बॉडी, अगर ल्यूकोडर्मा एल्बिनिज्म में पूरे बॉडी थ्रू आउट द बॉडी पिगमेंटेशन नहीं होता है, स्किन जो है पिंक कलर की लगती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन अंडरलाइन, क्योंकि जो ब्लड कैपिलरीज जो स्किन में होती हैं वो उससे ब्लड कैपिलरीज होती हैं. यहाँ तक कि आईलैशेस और आइरिस का कलर भी इससे अफेक्टेड होता है. दैट ऑल्सो रिजल्ट्स ओवर देयर. यानी कि ल्यूकोडर्मा में सिर्फ व्हाइट पैचेस होते हैं, कहीं कहीं पर जो है मेलानिन पिगमेंट लॉस होता है, लेकिन इसको क्योर नहीं किया जा सकता. जबकि एल्बिनिज्म में टोटल बॉडी इट इज एंटायरली लैकिंग ऑफ द मेलानिन पिगमेंट और पूरे स्किन जो है वो पिंकिश कलर का होता है. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन, we had it. Human skin contains some glands. Name any two glands and state their function. Human skin contains two glands and name two glands and state their function. See, human skin, it contains some gland, sebaceous gland, they secrete sebum. Sebum lubricates the skin and hair and prevents water loss from the skin and acts as a bactericidal agent. Bactericidal agent means it protects the skin from bacteria so that bacteria could not enter inside the skin and they can
इन्फेक्ट यू, कोई इन्फेक्शन आपके जो बैक्टीरिया सरफेस पे बैक्टीरिया होते हैं, स्वेट जो है उसको किल करता है, मारता है, खत्म करता है, ये स्वेट। और सीबम और स्वेट ग्लैंड्स, देयर मेन फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन, मींस रेगुलेशन, दे सीक्रेट स्वेट, यानी कि जब भी गर्मी होती है तो क्या होता है, पसीना बहुत निकलता है, इस जब पसीना निकलता है तो उससे बॉडी कूल डाउन होती है, तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। Now, what is the function of sweat? We have already done it. Thermoregulation of the body. How does sweating occurs? जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है, एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ता है तो स्वेटिंग होती है. And how is it regulated? It is regulated by secreting the sweat in our body. Now differentiate between eccrine gland and apocrine sweat gland. स्वेट ग्लैंड्स ही दो तरह की होती हैं, एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स एंड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड. एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी सरफेस. एपोक्राइन ग्लैंड दे आर फाउंड प्राइमरली इन एक्सिलरी एंड जेनाइटल रीजन, जो कि हम आपको पहले बताया, एक्सिलरी मींस आर्मपिट्स में, और आपके बॉडी के ये लेग्स के बीच में जो जगह होती है बॉडी, ये आपके टेल बोन और जो लेग्स स्टार्ट होते हैं वहां पर जो होती हैं आर्मपिट्स में, दोनों हाइंड लिम्ब फोर लिम्स के जो रीजन्स होते हैं वो एक्सिलरी पार्ट्स कहते हैं, और जेनाइटल यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के पास होती हैं. दे सीक्रेट फॉर देयर सीक्रेशन इन स्वेट डक्ट. भाई स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट डक्ट्स होते हैं, जैसा कि अब स्वेट डक्ट्स होते हैं, जैसे ये है ना, ये देखिए, ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं ये डक्ट है, इस डक्ट के जरिए ये यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स को पोर करती हैं, और जो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं वो सीबम निकालती हैं. Their ducts secretions into their hair follicle. ये हेयर फॉलिकल में इसको निकालती हैं. They are distributed all over the, they secrete sweat, they pour their sweat duct which comes out on the surface. They empty their secretions into the hair follicle. यानी कि ये नीचे की एपोक्राइन होती हैं, और एपोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जो कि स्वेट ग्लैंड्स क्या होती है, हेयर फॉलिकल के पास होती है. ये वाली नहीं है, ये वाली है, यहाँ पर ये यहाँ पर होती हैं, ये एपोक्राइन ग्लैंड्स, ये हेयर फॉलिकल है, ये यहाँ पर ये इसको सीक्रेशन को जज करती है, और जबकि जो स्वेट होता है वो इसमें वो हेयर बल्ब होता है, ये सरफेस हेयर के यहाँ जो होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, ये पोर्स होते हैं, यहाँ पर निकलता है. व्हाट इज द कंपोजिशन? What are apocrine glands? Where are they located? What are their functions? We have already done. State the composition of sweat. When we ask composition of the sweat, means it is the hypotonic filtrate. It contains 99% water, 0.2 to 0.5% salts and traces of urea, 0.08% vitamin C, ammonia and lactic acid, and sweat is acidic with pH of 4 to 6. 4 to 7 is the neutral. चूंकि 7 से नीचे है, 4 to 6, so it should be acidic in nature, right? Now here sebaceous gland. What are sebaceous glands? State their function. हालांकि ये भी हम लोग कर चुके हैं. Sebaceous glands, they are oil glands. They found all over the body except on the palms and sole. Palm sole, यहाँ पर स्किन मोटी होती है, यहाँ पर जो है sebaceous glands नहीं होती. फंक्शन क्या है इनका? Sebum softens and lubricates the hair and skin. It prevents hair from becoming brittle. It slows down water loss from the skin when the external humidity is low. It also kills bacteria on the surface of the skin. जो surface से bacteria होते हैं ये उसको kill करते हैं. Vasoconstriction and vasodilation. When we ask vasoconstriction, means when the arterioles leading to the blood capillaries in the surface layers of skin narrow down, reducing the flow of blood to skin. This cuts the amount of heat lost through the skin. It occurs in cold environment. जब सर्दियां होती हैं तब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो कैपिलरीज जो आर्टरियल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं. सिकुड़ने से क्या होता है, लेयर्स नैरो होती है तो फ्लो ऑफ ब्लड जो है स्किन में कम होता है. ये देखिए जब ये होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो इसमें देखिए जब ये होगा तो इसको जो ब्लड फ्लो यहाँ हो रहा था इसको कट ऑफ कर देते हैं. ये शंटिंग डन होती है. शंट बाईपास सरफेस कैपिलरीज ये इसको ब्लॉक करती हैं, जिससे कि जो है हीट जो बाहर इसमें देखिए वैसो डायलेशन में डायलेट करती है, चौड़ा करती है, जिससे हीट तेजी से बाहर निकलती है. एनर्जी लॉस्ट ऐसे यहाँ पर चूंकि बाहर सर्दी होती है, इट अकर्स इन द कोल्ड एनवायरनमेंट. सर्दियों में होता है तो हमें गर्मी की जरूरत होती है, तो हीट को रेस्टोर कर देती है. देखिए इसको ब्लॉकेज कर देती है, जिससे कि ये हीट बाहर
नहीं जा पाती। जबकि वेसोडाइलेशन में क्या होता है कि ये जो शंट वेसल्स होता है, जो यहाँ पे ब्लॉक है, ये टूट जाता है, तो यहाँ से एनर्जी इससे निकलती है डर्मिस लेयर से, एपिडर्मिस से। और ये जो जैसे वार्म एनवायरनमेंट है, तो जैसे जितनी एनर्जी, जब पसीना निकलता तो पसीना निकलने में भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। कोई भी काम बॉडी में होता है तो उस काम को करने के लिए बॉडी में एनर्जी लगती है, और उस एनर्जी के जरिए ही कोई काम हो पाता है। जैसे कि वेसोडाइलेशन में क्या था, आर्टरियोल्स लीडिंग टू स्किन कैपिलरीज दे डायलेट यानी चौड़ा होता है, एंड शंट वेसल्स आर क्लोज। शंट वेसल, जैसा कि आपने देखा ये शंट वेसल है, ये शंट वेसल्स बंद हो जाती हैं, लीडिंग टू इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो दे। ये जैसे ये है शंट वेसल, ये बंद हो गई, जब ये बंद हो गई तो ये ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो उससे एनर्जी बाहर निकली। एज अ रिजल्ट मोर हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट, एफिशिएंट कूलिंग मैकेनिज्म, यानी कि इससे शरीर ठंडा होता है। इट अकर्स इन वार्म एनवायरमेंट, यानी कि ये गर्मियों के दिनों में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए ब्राइट सनी डेज वी स्टार्ट स्वेटिंग, हाउ इज दिस ब्रॉट अबाउट? See, on a bright sunny days we start sweating, जैसा कि आप जानते हैं। तो whatever, sweating is the process in which sweat comes out of the skin. It helps in thermoregulation and prevents overheating of the body due to high tide. जब पसीना निकलता है तो शरीर ठंडा होता है, तो उससे क्या होता है, गर्मी हमारे शरीर से बाहर निकली। तो जब गर्मी बाहर निकलेगी तो ये कब होता है, जब बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। तो जब बाहर का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, तो क्या करती है, हमारी बॉडी बाहर से हीट लेना चाहिए। तो जब बाहर से हीट लेना शुरू होती है तो क्या करते हैं, उस हीट से जो वाटर हमारी बॉडी से एवापोरेट होकर स्वेट के फॉर्म में निकलता है। तो जब स्वेट के फॉर्म में वाटर निकलता है तो बॉडी कूल डाउन होती है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर, क्योंकि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमारा टेम्परेचर वरी नहीं करता है क्लाइमेटिक टेम्परेचर, लेकिन क्लाइमेटिक टेम्परेचर वरी करता है। गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर कम होता है। तो जब सर्दियां होती हैं तो कोल्ड है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, गर्मियां होती हैं तो वैसो डायलेशन होता है। और इसी तरह से यही कारण है कि गर्मियों के दिन ऑन अ ब्राइट सनी डे वी स्टार्ट स्वेटिंग मोर, एज मोर एंड मोर वी स्वेट, जितना ही स्वेटिंग ज्यादा होगी उतनी ही बॉडी कूल डाउन होगी, राइट। Now here, just we see the terms are given below. Here given below are the names of some structure classified into dermal and epidermal. Vein, it is a dermal structure. Dermal papilla, dermal. Fibroblasts, they are present in dermal region. Sebaceous gland, they are present in dermal region. Keratin uppermost layer, keratin epidermis में होती है. Nerve endings dermis में होती है. Stratum corneum epidermis में होती है. Stratum corneum होते हैं, कॉर्नियम वही कैराटिन लेयर जो कॉर्नियम अपर मोस्ट लेयर होती है। ये देखिए पैपिलरी लेयर क्या होती, ए थिन सुपरफिशियल फ्लूइड लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये पैपिलरी सुपर फ्लूइड लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव, यानी डर्मिस की पहली लेयर जो होती है वो कनेक्ट है। डर्मल पैपिला नर्व एंडिंग सेंसिटिव टू टच एंड पेन, दे आर प्रेजेंट इन द टर्मिनल पैपिला। ये आप देखिए, ये जो डर्मल पैपिला है, यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग्स में जो स्वेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पर हैं, ये है डर्मल पैपिला। ये एरेक्टर मसल्स, हेयर फॉलिकल्स, ये कैरेक्टराइजेशन इस रीजन्स में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये इस रीजन्स में ये डर्मल पैपिला होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, दिस दे आर प्रोडक्शन ऑफ द कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यूज के जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो टाइटेंड अप रहे। कोरियम इज व्हाट, इट इज द इनर थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ इलास्टिक लेयर। जर्मिनेटियम लेयर क्या होती है, इनरमोस्ट लेयर ऑफ यूरिनरी सेल्स विच डिवाइड टू प्रोड्यूस लेयर, यानी कि जो पहली जो जर्मिनेटिव स्ट्रेटम जो एपिडर्मिस की थर्ड लेयर जर्मिनेटिव, जो कि डिवाइड करती है नए सेल्स प्रोड्यूस, उससे कि सेल्स पुशअप होते जाते हैं और ऊपर जो है सेल्स रिमूव होते जाते हैं। ग्रैनुलर लेयर, ये जर्मिनेटिव लेयर के ऊपर ग्रैनुलर लेयर होती है। लेयर कंसिस्ट 3 to 5 सेल लेयर्स फ्लैटेंड सेल्स का, इसका कोई फंक्शन नहीं होती, जर्मिनेटिव लेयर प्रोड्यूस होती है, ये होती है तो ये लेयर धीरे धीरे ऊपर खिसकती है, और ऊपर जो आउटर मोस्ट है वो कैराटिन से आउटर मोस्ट, ये वाली हमारी ये लेयर दिखाई दे रही है, इस लेयर को बनाते हैं। कॉर्निफाइड लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द जो आउटर मोस्ट, इसके नीचे 3 लेयर्स और होती हैं जिसका कोई फंक्शन, जब नीचे वाली जो डिवाइड होती है तो वो ऊपर खिसकती है, जब वो ऊपर खिसकती है तो ऊपर वाली लेयर जो होते हैं वो रिमूव हो जाती है।
right? Now here you see the diagram based questions. Name the parts labeled A to F. देखिए A ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, B स्ट्रेटम मेलपीगाई है, ये C ये सीबेशियस ग्लैंड है, ये हेयर बल्ब है, ये रीजन हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ये फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हाइपोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है और ये डर्मिस है. दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज डर्मिस एंड दिस इज हाइपोडर्मिस. स्टेट द फंक्शन द पार्ट लेवल ए, ई एंड एफ. देखिए ए स्ट्रेटम कॉर्नियम के भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं. स्ट्रेटम कॉर्नियम के पार्ट्स 3 होते हैं. स्ट्रेटम ये आउटर मोस्ट लेयर कॉर्निफाइड लेयर, कॉर्निफाइड लेयर, ये आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर, ये देखिए 3 पार्ट्स ऑफ द सबक्यूटेनियस लेयर, आउटर मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर, मिडिल ग्रैन्युलर लेयर, इनर मोस्ट जर्मिनेटिव लेयर, यही इसका सेकंड पार्ट है. लेयर बी कंटेन्स ए पिगमेंट. तो लेयर बी कंटेन्स ए पिगमेंट. ये देखिए इट प्रोटेक्ट्स स्ट्रेटम कॉर्नियम, ग्रैन्युलर लेयर और ये ग्रैन्युलर लेयर, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. दिस लेयर hardens up to give the way to the outermost cornified layer. देखिए इट प्रोटेक्ट स्ट्रेटम, जो सेकंड बी है, फंक्शंस ऑफ ए, ई एंड एफ. ए स्ट्रेटम कॉर्नियम, it protects the deeper cells from mechanical damage, bacterial infection and drying out due to loss of water by evaporation. B granular layer, ये है ये E का फंक्शन देना है. E ये ग्रैन्युलर लेयर है, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. दिस लेयर हार्डन्स अप टू गिव वे टू द आउटरमोस्ट कॉर्निफाइड लेयर. यानी कि ये जो लेयर है इसके बाद यही लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम में चेंज होती है. F सीबेशियस ग्लैंड. सीबेशियस ग्लैंड का फंक्शन जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं. इट सीक्रेट्स सीबम, इट लुब्रिकेट्स द स्किन एंड हेयर, prevents water loss from the skin and acts as a bactericidal agent. Bactericidal agent मतलब स्किन सरफेस से बैक्टीरिया को रिमूव करती है या किल करती है, जिससे कि बैक्टीरिया बॉडी में अंदर नहीं जा पाते हैं. लेयर बी कंटेन्स ए पिगमेंट. What is the function of that pigment? Layer B contains a pigment that is called melanin. It imparts color to the skin. Now study the given diagram given below and answer the question. Now see here, this one is hair, 2 is sebaceous gland, 3 is hair bulb, 4 is hair follicle, and 5th is hair papilla. और ये जो लेयर है आपकी 6, I forgot to label it. ये एरेक्टर पिलाए मसल, ये है आपका एरेक्टर पिलाए मसल. एरेक्टर पिलाए मसल, ये जो मसल है आपकी एरेक्टर पिलाए मसल है. नेम द पार्ट्स लेवल 1 to 6 आपने कर लिए. नेम द 3 सब लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस. आपको मालूम है 3 सब लेयर्स एपिडर्मिस, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम मेलपीगियाई, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. Name the protein found in nails, horns and hairs. State its function. Protein present in horn, nails and function. There is a keratin protein found in nails, horns and hair. It protects the deeper cells from mechanical damage, bacterial infection and drying out due to the loss of water by evaporation. This is the second. Name the 3 sub layers, आपको बता ही दिए हैं. Name the protein found in nails. State the functions, ये आपके functions हो गए. Differentiate between albinism and leukoderma, ये हम already आपको बता चुके हैं. Albinism और leukoderma, ये देखिए. Leukoderma and albinism. Albinism, it is the complete loss of pigmentation all over the body. Skin appears pinkish due to the hemoglobin in underlying blood capillaries. And leukoderma, it is due to the loss of pigmentation. Small or large patches are formed at different regions of the body. It is the recessive trait. Means ये जेनेटिकल डिजीज है और इसका रीजन अभी तक पता नहीं चल पाया है. I hope everything is clear. Any doubt anywhere, ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you, children.